show you a shocking video that has emerged from the Surajkund Mela. This is the video of the collapse of the tsunami swing. This happened yesterday. Take a look at the pictures. Horrifying visuals have emerged. This happened at the Surajkund Mela. The tragedy involves the collapse of a tsunami swing which occurred in the evening. It led to the death of an on-duty police inspector while he was trying to rescue victims. And many people have been injured. As per reports, there have been at least 12 to 13 injuries. This incident took place yesterday at around 6 p.m. when the swing, which was operating at full capacity, suddenly collapsed and it caused panic and chaos. That moment has been caught on camera. The police inspector who was there on duty, he was trying to rescue people. He suffered injuries and later died during the rescue operation. The area currently has been barricaded, and the Chief Minister of Haryana has also expressed deep sorrow and condolences for the loss of life. The government of Haryana has said that it is committed to providing assistance to the injured and their families. We've accessed details of the FIR, and that's the next breaking news input on this story. Times Now has accessed details of the FIR in the Surajkund tsunami swing collapse tragedy. As per the FIR, there has been negligence that has been pointed at, negligence by the swing operator, and how the swing operator ignored safety norms. This negligence resulted in one death. The FIR also talks about the sections under which the case has been registered. So now the focus is on the negligence. The swing operator in question here, also his role also comes under lens. But once again, viewers, take a look at this video on your screens. This is at the Surajkund Mela. This was a tsunami swing. It was operating in full capacity when at around 6 o'clock in the evening yesterday, it suddenly snapped and collapsed. There was chaos. There was panic. An on-duty inspector who was trying to save victims there suffered injuries and later succumbed. Here's what the police have to say. Crime-free मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। आज रियलिटी चेक करेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करके आपको बताएंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि तमाम झूलों को चेक किया जाता है हर दिन और उसके बाद सर्टिफिकेशन और एनओसी दिया जाता है। अब देखिए, एक झूले पे हम मौजूद हैं और यहां पर देखिए आप किस तरीके से इस झूले का जो ये सीट है, इसके नट जो पुर्जे हैं वो बिल्कुल टूटे हुए हैं। देखिए यहां पर हिले हुए हैं, आपको नजर आएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए, एक दूसरी तरफ ये जो बहुत टाइट है, ये देखिए बिल्कुल इंटैक्ट है। इसके बगल में देखिए ये बिल्कुल टाइट है, इंटैक्ट है। वहीं इसको देखिए ये किस तरीके से हिला हुआ है और ये स्विंग है, यानी कि ये आप समझिए ऊपर इस तरीके से उठ के जाता है और उसके बाद वो फिर नीचे आता है। ऐसे में अगर जोरदार प्रेशर आए तो ये बहुत मुमकिन है कि ये जो झूले का नट है वो निकल जाए। इसी तरीके से देखिए कुछ और नट हैं वो इसके यहाँ पर हिले हुए हैं। देखिए आपको एक और जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से। ये देखिए इसके भी जो नट है ये देखिए यहाँ पर हिले हुए आपको नजर आएंगे। ये इंटैक्ट है, ये हिला हुआ है। इस तरीके से जब हमें ये दिख रहा है, जब हम आपको ये दिखा रहे हैं, तो आखिर ये प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर जो झूला चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं उनको ये क्यों नहीं दिख रहा है? और आखिर इन सिस्टम के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कब होती हुई नजर आएगी? सूरजकुंड मेले में एक बड़ा हादसा हुआ जहां मेले में लगे झूला अचानक से गिर गया। पहले आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए ये वही वो झूला
है और शाम के तकरीबन 6:15 के आसपास की घटना है। इस झूले के ऊपर लगभग 15 लोग सवार थे और ये झूला अचानक से ढम से गिरता है। जिस वक्त ये झूला गिरा इसके आसपास भी लोग मौजूद थे। ऐसे में अचानक से अफरा तफरी का माहौल हुआ और तमाम जो लोग घायल थे उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन जब ये पूरा हादसा हुआ उस दौरान एक पुलिसकर्मी जब लोगों को बचाने के लिए वहां से रेस्क्यू करने निकले, अचानक से उन्हें झूले का एक हिस्से से चोट लगा और उस पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। तो आपको तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ पे छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब पूरा हादसा हुआ उस दौरान से लगातार जो तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गए। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से भी मामले की जांच को लेकर के आदेश जारी किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि वह जो है जो लोग घायल हुए हैं उनके त्वरित इलाज किया जाए। फिलहाल जो 13 लोग जो घायल थे उसमें से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तमाम अधिकारी वो भी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे घटना इस पूरे हादसा का जिम्मेदार कौन है। Well, that is time for us viewers to slip into a short commercial break. We'll be back with more news and updates. Stay with Times Now.